Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the sixth part of the chapter number 2, dual effect of transaction and types of account. In part 1, we have discussed meaning of business transaction, its classification, and we have tried to solve illustration number 1. In part 2, we have tried to identify whether the transactions are cash transaction or the credit one. In the same part, we have also tried to solve illustration number 2, where we have tried to find out whether the transaction is cash transaction or the credit one. In the same part, we have seen the difference between voucher, then its meaning, types, and the components which are there when we are preparing any kind of vouchers. Part number 3 has one important question, that is dual effect of transaction, and in which we also seen the illustration number 3. Part 4, as you know, we have discussed the most important thing, that is types of accounts. And in the same one, we have completed fourth illustration. And in the next part, part number 5, we have done one more illustration, that is illustration number 5. So till now we have completed 5 illustration of this particular chapter. Okay. So this is the sixth part. Here, the part will be quite shorter than the previous one, because in this particular part, I am just going to give you the brief idea from part number 4 and part number 5. Clear? But the part number 7 is the most important one, so don't forget to see that. So, we are starting with the part number 6 with illustration number 6. Now what illustration number 6 says? Transaction in reference to expenses and types of accounts. Okay, so you have seen there are various transactions: salary, outstanding salary, salary paid in advance. So what kind of types of transaction or type of account it can be considered? तो हम क्या करते थे, हर बार हमने देखा कि सैलरी हुआ, रेंट हुआ, कमीशन हुआ, ब्रोकरेज हुआ, तो ये सारी चीजों पे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट डिपेंडेंट रहते थे. ओके, तो उसमें जैसे कि सैलरी हुआ तो सैलरी में हमने नॉमिनल अकाउंट ले लिया, फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग हुआ तो उसमें हमने पर्सनल अकाउंट लिया. सो मैनी स्टूडेंट हैव कम विथ दिस काइंड ऑफ डाउट कि सर ये दोनों चीज में ये चीज अलग क्यों आती है. सो हियर इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट वन, द सैलरी. Here we are only discussing about the salary for the whole accounting year. That means for 1 year. That means अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और उसके अगर अंदर आपके 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो 10 एम्प्लॉय को पूरे 12 महीने तक का जो भी आप सैलरी देने वाले हो, उसका जो टोटल होगा वो तो आपका रूटीन एक्सपेंस है, बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू पे सम अमाउंट टू देम. So that's why it's a expense and it's a nominal account. To run the day-to-day transactions, whatever income and expenses we are doing, that is considered as your nominal account. अब सेकंड है, इसमें क्या डिफरेंस है? सैलरी आउटस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग? जब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 10 एम्प्लॉय थे, इसमें से एक एम्प्लॉय का नाम था मिस्टर अमित. तो अब अमित सैलरी लेने आया, तो हमने बोला कि अभी आपकी सैलरी नहीं हो सकती, हम आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ कर देंगे. तो उसे क्या बोला जाएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो अब जो एचआर वाला बंदा होगा, जो पूरे साल आपका जो सैलरी करता होगा, अकाउंट्स वाला बंदा होगा, उसको तो पता ही होगा ना कि किसकी सैलरी बाकी है. तो अगर आपको पता है किसकी सैलरी बाकी है, तो उसे नॉमिनल एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा. उसे कौन सा एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा? उसे कंसिडर किया जाएगा पर्सनल अकाउंट. क्यों? क्योंकि उसमें नेम ऑफ द पर्सन आ गया है. कौन सा? अमित. क्लियर? सेम वे सैलरी पेड इन एडवांस. अब कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को थोड़ी जल्दी जरूरत होती है कोई बार सैलरी की, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आया पैसे लेने के लिए कि सर घर पे इमरजेंसी आई है मेडिकल, तो हमें 10,000 रुपये एडवांस में चाहिए. तो आपको तो पता ही होगा ना कि कौन लेने आया है. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द पर्सन इज विशाल, तो हम क्या करते हैं, विशाल के अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा दे देते हैं. तो वी हैव पेड द सैलरी इन एडवांस. Again, it's a personal account. Why? Because the name of the person is there. Same way, it is considered as a receivable. Why receivable?
because we have already paid the amount to him, we are going to receive that amount after the end of some periods. Clear or not? Or in the next month we are not going to credit the regular salary. ये भी तो हो सकता है. क्या करेंगे? या तो फिर एडवांस में हमने दे दी उसको सैलरी, तो नेक्स्ट मंथ पे नहीं करेंगे, या तो फिर ऐसा बोलेंगे बाय एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू गिव दैट अमाउंट बैक टू अस, तो हम नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी कर पाएंगे. पता चल रहा है? ये चीज है. और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसे लायबिलिटी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आपको देनी बाकी है. दैट मीन्स इट्स योर लायबिलिटी टू पे अमाउंट टू मिस्टर अमित. क्लियर? नेक्स्ट वन, रेंट पेड. एज यू नो, टू रन डे टू डे ऑपरेशंस वी हैव टू पे रेंट टू अवर लैंडलॉर्ड्स. क्लियर? सो दैट्स अ नॉमिनल एक्सपेंस. ये तो आपको पता है, ये रेंट पे किया है तो आपका एक खर्चा है, ये हर महीने आता है. ओके, अब रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया. आउटस्टैंडिंग होगा तो नेम ऑफ द पार्टी भी आ जाएगा कि किसके नाम पे ये आउटस्टैंडिंग है. सेकेंड थिंग, कि ये लायबिलिटी क्यों कंसिडर किया जाएगा? बिकॉज हमको पे करना बाकी है. हम थोड़े टाइम में ये पे करना जो बाकी है 10,000 या 20,000 रुपया रेंट, वो थोड़े टाइम में हम पे कर देंगे. दैट्स वाई इट्स अ लायबिलिटी. बट if you have paid the amount in advance, then it is receivables. Why? Because ultimately you are going to get that amount back after some times. Clear? Next, commission paid. Now what is commission paid? कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे बिजनेस रन करते हैं और उसके अंदर कई बार क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे गुड्स परचेज करने के लिए आया है, तो हम क्या करते हैं, उसको कमीशन पे करते हैं. ओके? अगर हमने किसी को सेल आउट किया, कोई प्रोडक्ट सेल आउट किया, या तो क्या करते हैं कि सेल्समैन को हम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, तो वो सारी एक्सपेंसेस किए जाएंगे. और ये एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंसेस और टाइप्स ऑफ अकाउंट में डालेंगे? नॉमिनल अकाउंट में. क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज कमीशन आउटस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज कमीशन आउटस्टैंडिंग? अब देखो कि अगर आपको एक आपका जो सेल्समैन था उसको कमीशन देना बाकी रह गया, सो दैट्स योर लायबिलिटी. अब किसके नाम पे बाकी होगा? उस बंदे के नाम पे बाकी होगा. दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सनल अकाउंट. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज कमीशन पेड इन एडवांस. अगर आपने किसी को कमीशन एडवांस में पे किया है तो आपको पता ही होगा नाम क्या है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया. सेम वे इट्स रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स मतलब हमको उनसे लेने का बाकी निकलता है. वी हैव पेड देम इन एडवांस, दैट इज अवर असेट्स. क्लियर? नेक्स्ट, ब्रोकरेज पेड. For same for the brokerage, because it's a nominal expense, we are going to pay brokerage by end of the month. Every month we are going to pay the brokerages. Okay? तो ये हर बार जितनी बार भी हमारा बिजनेस होगा ब्रोकरेज देना पड़ेगा. कोई भी इंटरमीडिएट रहा है उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा. तो ये कंटिन्यूअस रूटीन बिजनेस का टाइप है. क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें तो ये पता ही है ना कि किसको देना बाकी है. दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सनल अकाउंट. नाउ एज इट इज आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स इट्स अवर लायबिलिटी. नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रोकरेज पेड इन एडवांस. कई बार क्या करते हो आप, एडवांस में दे देते हो कि भाई ये आपका 50,000 का ब्रोकरेज था, अभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट होना है वो बाकी है, पर आप अभी 25,000 रुपए रखो. तो हमने क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया. अगेन एडवांस में दिया तो किसी आदमी को ही दिया होगा, तो उसका पर्सनल नंबर तो होगा, पर्सनल उसका पता तो होगा कि क्या नाम है, क्या चीज है. समझे? तो उसे क्या कहा जाएगा? रिसीवेबल्स और पर्सनल अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट वन, द ट्रांजेक्शन रेफरेंस टू द इनकम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. अब क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि इनकम्स भी जनरेट होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड. तो ये सारी इनकम्स जो है और उनके आउटस्टैंडिंग और एडवांस है, तो उसके अंदर हम क्या एंट्री करेंगे वो देख लो, और कौन से अकाउंट इसको कंसिडर किए जाएंगे. सबसे पहला कमीशन रिसीव्ड. हमको कमीशन मिला है, डे टू डे ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है, हमको कमीशन मिला, दैट मीन्स अवर इनकम हैज इंक्रीज्ड. यस और नो? इनकम हैज इंक्रीज्ड. सेम वे कमीशन रिसीव्ड, दैट इज नॉमिनल अकाउंट. क्यों? डे टू डे ऑपरेशन में होगा. इनकम एक्सपेंस, ऑल इनकम एक्सपेंस विल बी कंसिडर एज अ नॉमिनल अकाउंट. देन कमीशन आउटस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज कमीशन आउटस्टैंडिंग? कई बार क्या होता है कि हमको कमीशन मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, हमको ही मिलना बाकी है. सो इट्स अ पर्सनल अकाउंट. क्लियर? इट्स रिसीवेबल. व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दैट अमाउंट इन सम टाइम, but that is our assets. Okay, so it will be on the name of the person. Next one, that is commission received in advance. कई बार क्या होता है, हमको कमीशन एडवांस में मिल गया,
Again, it's a on the name of the person, so it's a personal account and it's considered as an liability because अभी तो देना नहीं था पर उसने एडवांस में आपको दे दिया. ओके. नेक्स्ट, ब्रोकरेज रिसीव्ड. नाउ व्हाट इज ब्रोकरेज? अगेन कोई भी एक ऐसा बिजनेस करोगे जिसके अंदर आपको इंटरमीडिएट बन के काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? ब्रोकरेज मिलेगा. अगर ब्रोकरेज मिल रहा है तो उससे कौन सा अकाउंट कंसीडर करेंगे? नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे बिकॉज इट्स अ इनकम फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट, ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग है, हमें मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, इट बिकम्स योर असेट्स, दैट्स व्हाई इट्स रिसीवेबल. और आउटस्टैंडिंग है तो नेम ऑफ द पार्टी होगा ही होगा, किसी के नाम पे ही होगा, सो इट्स अ पर्सनल अकाउंट टू. ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिल गया, सो इट्स विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी लायबिलिटी. क्लियर? और इसे भी कौन सा अकाउंट कंसीडर किया जाएगा? पर्सनल अकाउंट. That same will be applied for dividend received as well as rent received. So this is the illustration number 6. I hope you have seen and understood whatever I have explained. Please try to solve it by your own. What you need to do, you have to just write down this transaction in note in the paper, and afterwards try to solve it whether it is expense, liability or income. Okay, and whether it is assets or not, then what kind of types of accounts will be considered it as. Now the most important question of the chapter, that is golden rules of accounting. Clear? Take a screenshot of this particular slide. Remember this, for real account, all the assets which are tangible and intangible, what is the rule? Debit what comes in, credit what goes out. Okay. For personal account, all the parties, whether they are debtors or creditors, what is the rule? Debit the receiver and credit the giver. And the third one, that is your nominal account, all the items on profit and loss, income and expenditure, what is the rule? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Write down this particular rule for 3 times, so you are going to remember it for the whole life. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.